Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So I am happy that gradually our initiative on group discussion is showing results. On my video on latest topic, that is role of MSME in job creation, I have received 142 comments. 142 comments, and I observe this time the comments, the quality has improved. Quality has improved to large extent. Some viewers, those were hesitant, they are coming forward, they are expressing their views and able to learn certain things by experience of or sharing of thoughts by other persons. But still, we are far behind the perfection. My purpose of all these videos is take you to the level of perfection. And the level of perfection will get you maximum marks in GD. And you will outclass everyone there. And even the board may appreciate you like anything. That is my endeavor. Now, look at the topic and how to approach it. Topic is role of MSME in job creation. In group discussion, it is very important to understand the topic and confine our views around the topic. Most of the times, the candidates, they are giving the views that is around the topic, not on the topic. Now, in this topic, we must understand the words. Role of MSME in job creation. So, where is the focus? Not on MSME. Focus is on job creation. Now, where this group discussion is being conducted? In SBI PO. The people, those are evaluating your performance are bankers. So, the hidden word is bank. They have given you a topic, but the hidden word is bank. So, what is this topic? Role of MSME in job creation. Most of the participants, they revolved around their discussion on MSME, what MSME is, what is the role of MSME in economy and all that. But that is not the topic. Topic is role of MSME in job creation. That means MSME may be playing various roles, but that is not your topic of discussion. Your topic of discussion is job creation. So a person who has clear vision, a person who can understand the topic will directly hit the bullseye. And bullseye is job creation. So what MSME is? MSME means engaging in a service sector or engaging yourself in a manufacturing sector. So to set up a service sector or to set up a manufacturing unit, you need the financial assistance. And the financial assistance is provided by the bank. But what does it mean to the person who is involved in MSME? First, he is creating self-employment. So, role of MSME in job creation is to create self-employment. So, first your focus should be, so if we encourage MSME, it is creating self-employment. The person, those will start this activity with the assistance of bank finance, they will be able to generate employment for themselves. That means they will become now job giver instead of job seeker. So first they are giving job to themselves. They become self-employed person. So role of MSME in job creation is it creates a workforce of self-employed people.
Now these people, those are setting up these activities, they need not go to any other organization to seek employment. Rather, they are creating employment for themselves. So this is one role. So how job is created? They have created job for themselves. They have become self-employed. Then what they have done is, after becoming self-employed, now they are engaging people to run the activities. So depending upon nature of activity, they may employ entire family, all set of their friends, their relatives, or other people in the activity. So once a person starts an activity, he need not only give employment to himself or herself, but give employment to the people around him or her. They may be closely related, they may be unrelated. So that's why once we set up any MSME unit, maybe manufacturing or services, it is creating job for one or more people, and that is the role of MSME in job creation. And that's why bank provides credit to these people at softer terms, and that's why government promotes this sector. That should be your focus. Means once the topic is job creation, we should spell out how job is created. Merely sharing the data that how many people are engaged in this, lakhs of people are engaged in that, and MSME is a vital. These are all theoretical inputs. In group discussion, he wants to see your capability of coming to the point. He is asking how MSME is creating the job. Tell me. That is the topic. So the examiner want to see, have you understood the topic? If you have understood the topic, can you tell us how it is creating jobs and how many jobs it is creating? So we have to take an example of a smaller unit. Say somebody starts a tailoring shop. So he is engaging himself. He may be employing 2-3 more tailors. Then he may be seeking the help of some advertisement person. So you have to take the examples and explain the topic. So my idea of running this series is, on one side we are making you think, on one side I am making you become a person who can create ideas, helping others, and by reading your comments, the all other candidates also get the insight, and then I am supplementing it. So for non-commerce graduates, I will advise they should watch my entire set of 192 videos on banking, financial and economics. It will help them to understand these basic concepts. What MSME is, what type of activities they are carrying out. So because I have covered all these topics there. So I am giving you a link in the description column. Go to the description column and watch 10 videos per day. It will give you edge over others. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. देखो, हमने ग्रुप डिस्कशन का स्टार्ट किया. पहले दिन कम रिस्पांस आया. आज मैंने देखा 142 लोगों ने कमेंट किया, 142 लोगों ने पार्टिसिपेट किया. मेरा मकसद ये है अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करें. जो आपके दिल में डर है उसको आप दूर भगा सकें, आपके अंदर एक थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सके, आप अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने रख सकें. इस प्लेटफॉर्म में केवल आपको इनकरेजमेंट मिलेगी. चाहे वो आइडिया कैसा भी होगा, कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा. हम ये चाहते हैं धीरे धीरे मैं आपको एक परफेक्शन स्टेज पे ले जाऊं. एक परफेक्शन स्टेज जहां पे जब आप बोर्ड के सामने जाएं तो आप सारे कैंडिडेट को आउट प्लेस कर सके और बोर्ड आपको क्लैपिंग करके आपको अप्रिशिएट करे और हाईएस्ट मार्क्स दे. तो ये धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं होगा, एक रात में नहीं होगा. जो वीडियो में मैं बातें बता रहा हूँ, यदि आप उसका ध्यान रखते जाएंगे और उसके अनुसार अपने मन को बनाते जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा आंसर बना पा रहे हैं. आज का टॉपिक था एमएसएमई का रोल जॉब क्रिएशन में. अब आप ये देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है.
अधिकांश लोगों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा कमेंट किया, जो उनके पास विचार थे प्रस्तुत किए। पर आप ये देखेंगे कि जो उसमें पूछा गया उसके आसपास कोई पहुंच पाया। मीन्स हम सब्जेक्ट को समझ नहीं पाए। सब्जेक्ट क्या था? एमएसएमई सब्जेक्ट नहीं है इस टॉपिक में, जॉब क्रिएशन सब्जेक्ट है। एमएसएमई का क्या रोल है जॉब क्रिएशन में, ये पूछा गया है। और पूछने वाला कौन है? स्टेट बैंक। वो क्या है? बैंक। तो बैंक एक हिडन क्वेश्चन है इसके अंदर। तो अब हम एक बैंक की जॉब के लिए जा रहे हैं, एमएसएमई पे चर्चा कर रहे हैं और बैंक का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो चर्चा अधूरी है। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? जॉब क्रिएशन पे। और बैंक का क्या रोल है एमएसएमई में, ना कि हम एमएसएमई की महिमा गाएं। एमएसएमई की पूरे इकोनॉमी में बहुत महिमा हो सकती है, पर वो इकोनॉमी में आपकी महिमा नहीं पूछ रहा, वो एमएसएमई का नौकरी देने में क्या योगदान है ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेसिफिक पे आपको पहुंचना है। तो एमएसएमई क्या है? कोई सर्विस सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग है। मीन्स किसी भी तरह की सर्विसेज देने वाला व्यक्ति भी एमएसएमई में लोन ले सकता है और मैन्युफैक्चरिंग करने वाला भी लोन दे सकता है। तो अब ये जो व्यक्ति ये यूनिट चालू कर रहा है, ये जो यूनिट एस्टेब्लिश कर रहा है, इससे वो क्या कर रहा है? वो अपने आप को रोजगार दे रहा है, स्वयं रोजगार क्रिएट कर रहा है। तो पहला जॉब क्रिएशन क्या हुआ कि जो व्यक्ति इसको चलाएगा एक्टिविटी को, अब वो जॉब के लिए बाजार में नहीं जा रहा है, वो किसी से एम्प्लॉयमेंट नहीं मान रहा, वो क्या कर रहा है? अपने को नौकरी दे रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय कर रहा है। दैट मीन्स अब वो जॉब सीकर से जॉब गिवर बन चुका है। उसने अपने आप को एंगेज कर लिया, अपने आप को रोजगार दे दिया और अपने को जॉब क्रिएशन में शामिल कर लिया। पहला। उसके साथ उसने क्या किया? अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व कर लिया, अपने रिश्तेदारों को इन्वॉल्व कर लिया, या अनजान लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो जिन भी लोगों के साथ उसने संपर्क बनाया इस एक्टिविटी को चलाने के लिए, या जिन भी लोगों को उसने एंगेज किया, तो उसने क्या किया? इन लोगों को भी रोजगार दे दिया। तो अब ये जो व्यक्ति जॉब सीकर था मार्केट के अंदर, वो क्या बन गया? जॉब गिवर, अपने आप को जॉब देने वाला और अनेकों लोगों को जॉब देने वाला। तो जितनी ज़्यादा ये संस्थाएं बनती जाएंगी, जितनी ज़्यादा ये संस्थाएं चल पाएंगी, उतनी ज़्यादा रोजगार का सृजन हो जाएगा। तो एमएसएमई का रोल इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ व्यक्ति किसी से नौकरी लेने नहीं जा रहा, अपने लिए नौकरी पैदा कर रहा है। तो हमें नौकरी कैसे क्रिएट होनी है, इसको फोकस करना है। नौकरी कैसे क्रिएट की एग्जाम्पल देके हम उसमें ग्रुप डिस्कशन में पेश कर सकते हैं। मान लो वो टेलरिंग की दुकान खोल रहा है, तो वो खुद भी कपड़े सिलेगा, 2-3 लोग और एंगेज करेगा जो उसके साथ कपड़े सिलेंगे, कोई डिज़ाइनर भी हो सकता है लगाए वो, और कोई ऑर्डर बुक करने के लिए बॉय भी एंगेज करे, कोई डिलीवरी देने के लिए बॉय एंगेज करे। तो उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी। और बैंक का क्या रोल आया? अब ये एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए उसको पूंजी चाहिए। ये पूंजी कहाँ से मिलेगी? ये बैंक मुहैया करा रहा है। तो जब हम बैंक के किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हम उसको बैंक से कैसे जोड़ सकते हैं टॉपिक को, क्योंकि जो भी वहाँ पूछा जाएगा वो कहीं ना कहीं बैंक से रिलेटेड होगा टॉपिक। तो यहाँ भी माइंडसेट देख रहा है एग्जामिनर कि इसको टॉपिक को बैंकिंग से जोड़ना आता है कि नहीं आता है। वो हिडन है, उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है। अब जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनसे, और खासकर जो कॉमर्स के भी हैं, उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है 192 वीडियोस मेरी आप जरूर देखें। इससे आपको जो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं, बैंकिंग कंसेप्ट्स हैं, फाइनेंशियल कंसेप्ट्स हैं, उससे पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। 10 से 15 वीडियो रोज देख लीजिए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उससे क्या होगा कि आप जो हम टॉपिक लेंगे उसके ऊपर आपको बैकग्राउंड भी पता होगी, तो आप आसानी से उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। साथ ही साथ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पार्टिसिपेट जरूर करें। ये मत चिंता करें मेरा व्यू हल्का होगा या अच्छा होगा, मैं सभी व्यूज़ को लाइक कर देता हूँ, सभी को मैं लव
साइन भी दे देता हूँ। क्यों? मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। कहाँ से क्रिएटिविटी निकल आएगी ये पता नहीं लगती है। कई लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बताना ही नहीं चाहते, आइडिया उनके बहुत अच्छे होते हैं, पर जब हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, बात करने का मौका देते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, वो आगे निकल चलते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन काल में जितने भी मेरे एम्प्लॉइज ने मेरे साथ काम किया, उनको मैंने भरपूर मौका दिया ग्रो करने का, और आज यही कारण है कहीं सीजीएम है बैंक के अंदर, चीफ जनरल मैनेजर, कहीं जनरल मैनेजर हैं, कहीं डिप्टी जनरल मैनेजर हैं, कहीं एजीएम है। आज बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट बैंकों में मेरे पढ़ाए हुए लोग उच्च पदों पे आसीन हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन सब लोगों को मैंने मौका दिया आगे बढ़ने का, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का भरपूर मौका दिया, और आपको भी मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मौका दे रहा हूँ। घबराइए मत, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई आपके कंट्राडिक्शन नहीं करेगा व्यूज़ को। जो भी करता है मैं उसको डिलीट भी कर देता हूँ, कई कमेंट्स को मैं अलाउड नहीं करता हूँ। मेरा एम ये है कि सब लोग निर्भीक होकर अपनी बात कहें, और फिर जो मैं बात आपको बता रहा हूँ उसको सामने रख के अपने विचारों को धीरे 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 परफेक्शन की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें। आप ये प्रयास करेंगे, कामयाब होंगे, रियल जीडी के अंदर आप बहुत बेहतरीन मार्क्स लाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। गॉड ब्लेस यू ऑल।